this session of 2D to 3D conversion. First, I would like to know that what is the difference between 2D and 3D? So, can I have some answers from you all? In the chat box, if anyone can just type. We have so many attendees today, but it would be great if anyone can type in chat box what is the difference between 2D and 3D. So, anyways, I've not got any answers. So, if we move ahead, so if I come here on 2D and 3D, if you can see my slide. So, if you see this, the first object over here or the shape over here, which is a rectangular, is in 2D, and the same form, if you go here, it is in 3D. So, if you see, this is the cube over here, and this is a square over here. So, the transformation from the square to this cube is the process of 2D and 3D. So, in 3D, we get another axis which we all know, which is known as the z-axis here. So z-axis is nothing but the depth. So अगर आप यहाँ पर देखोगे, you will be getting a flat shape over here in 2D. So it basically has got two axes, which has got x and y. But in 3D, we have got three axes, which is x, y, and z. So this is what the 3D object looks like. Now moving ahead, I would like to share DOF. Now, what is DOF? DOF is something which is known as depth of field. So, depth of field, if we see, it's the distance between the farthest objects that are in acceptably sharp focus in an image. The depth of field can be calculated based on focal length and the distance to subject. So, बहुत बार हम देखेंगे like this depth of field over here is nothing but the how much far is your object or how much far is your character from your camera and the background. So this we often use in our day-to-day when we are doing some photography from our mobile. So there is an option which says portrait mode. So पोर्ट्रेट मोड में होता क्या है, बेसिकली आपका जो बैकग्राउंड रहता है वो ब्लर हो जाता है और आपका जो कैरेक्टर रहता है वो फोकस में आ जाता है. It can be a character or it can be any object, as you can see from this image. Again, over here, if you see, there is an object over here, and background, if you see that background has completely become blurry. We are using in day-to-day life. आज के time पे we all are using smartphones. So कोई भी smartphone में आप देखोगे there is a option which says portrait mode. So उसमें basically होता क्या है कि जैसा कि मैंने कहा background पूरा blur हो जाता है, right? So this also is applicable for our selfie camera. जब हम selfie camera से कोई फोटो लेते हैं तब भी हमारा जो background रहता है वो पीछे out of focus हो जाता है. Moving ahead, so I'm sure for the students who are there in 3D modules, they must be knowing depth map. So what is depth map? Depth map is an image which comprises color tones between black and white grayscale. It is the distance between surface of objects from camera. It is created from a flat image, and after merging with source, the final output is derived. So, अगर मैं आपको एक example दिखाऊं, if I show you an example of the depth map over here,
me move ahead to my next slide, which is this. So if you see, this is a normal image जहाँ पे there is a depth of field. So एक टेबल है, उसके ऊपर एक कॉफी मग है एंड उसके पीछे एक बुक है एंड उसके पीछे there is this window panes. So ये normal image को we had converted this into a depth map inside Photoshop over here. And जब आप देखते हो in the depth map, so this is the depth map of this particular image. So ये आपको output कुछ ऐसा दिखेगा. So this is what depth map all about. Now I'll be moving on to my Photoshop. So I'll go to my Photoshop here and I'll just drag and drop this image over here. So अगर आप देखोगे एक छोटे किड का एक फोटो है and there is a nice background also, and this character over here is completely in focus. So what I'll be doing first is I'll be selecting this character and this object over here, the entire object with my background in another layer. So सबसे पहले मैं क्या करूंगा, I'll come here, इसको मैं duplicate करूंगा by Control J, और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है या ये जो मेरा कैरेक्टर है, इसको मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के द्वारा इसको मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा. So I've selected this. So now if you see the entire thing has been selected यहाँ पर, और again कुछ एरियाज जो है हमको सिलेक्ट करनी है. So I'll just go here and hold my shift option so that these areas become selected. Or else I can also use the quick selection tool. Also अगर आप देखोगे कुछ एरियाज हमको यहाँ पर वापस से सिलेक्ट करना पड़ेगा, which is of the character only. इसको हम Alt press कर Alt button and then we'll be removing this. Again, if you see this portion is not selected over here, so इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे select करेंगे. So ये मैंने ऑलमोस्ट पूरा सिलेक्ट कर लिया है. सो नाउ व्हाट आई विल डू इज इसको मैं एक अलग लेयर में लेना चाहूंगा. सो ये जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो जे करूंगा और आई हैव टेकन दिस इनटू अ न्यू लेयर. सो इफ यू सी this has been totally selected. So this was here. So I will name this and इसको select कर I will be going here and I'll be just deleting this so that मेरा आ गया और इसके पीछे ये बैकग्राउंड आ गया. So this character को मैं जाऊंगा जब, तो what I will do is इसको मैं सिलेक्ट करूंगा पूरे कैरेक्टर को एंड इसको आई विल बी फिलिंग दिस विद अ कलर व्हिच विल बी वेरी ब्राइट कलर व्हिच इज व्हाइट. सो फॉर मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट और मेकिंग एनी क्रिएटिंग अ डेप्थ मैप, बेसिकली यहाँ पर मैं एक डेप्थ मैप क्रिएट कर रहा हूँ. सो ये डेप्थ मैप को मैं क्या करूंगा इसको मैं बेसिकली जो एरियाज या जो कैरेक्टर्स या जो ऑब्जेक्ट्स हैज टू बी ब्राइट and the areas which are far from a camera has to be dark. So this has to be maintained between the color white and black. You cannot choose a color, maybe a dark blue or a light green or a orange color. So it has to come. जैसे ये आप मेरा Photoshop का चैनल देख पा रहे हो यहाँ पर, राइट. सो यहाँ पर मैंने एक कलर पिकर ये चूज किया है. सो आई विल चूज दिस एज मे बी व्हाइट एंड आई गो हियर ओके, और इसको मैं फिल करूंगा
तो इसको मैंने फिल कर लिया फ्रॉम विथ माय वाइट कलर. अगेन आई विल गो हियर, दिस इज माय बैकग्राउंड, तो इसको मैं डार्क करूंगा समवेयर ओवर हियर. यहाँ पे आऊँ, यहाँ पर अगेन कुछ एरिया है जो चूज हुआ है, सो वी हैव टू सी कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस. सो इसको जैसे अगेन यहाँ पर अगर आप आओगे, if you come here, I'll still choose my brush and I'll select this color and इसको I will paint this. Again on this I will go here and I will include this over here, or else I can also use my eraser brush and I'll just remove this so that मेरा background is completely dark over here, which is in gray, and this is my character. So ये दोनों को मैं ग्रुप कर दूंगा. ये है मेरा ओरिजिनल, ये है मेरा ग्रुप. सो इसको मैं अभी के लिए सेव एज करूंगा, फाइल सेव एज, सेव ऑन कंप्यूटर. सो आई नेम दिस एज आउटपुट. सो ये मेरा हो गया डेप्थ मैप ओवर हियर, जो मेरा ये था. आई विल नेम दिस एज इमेज अंडरस्कोर 01 और इसको मैं चूज करूंगा जेपेग में. ये सबको मालूम है हमको कैसे चूज करना है इन जेपेग फॉर्मेट. चूज जेपेग इमेज अंडरस्कोर 01, सेव एंड हिट ओके. यहाँ पर मैं आऊंगा इनसाइड माय ग्रुप 1 ओवर हियर, दिस इज माय डेप्थ. सो फाइल सेव एज. यहाँ पर एक चीज आपको बहुत नोटिस करनी है कि इसके अंदर आप जब जाओगे, सो जेपेग आप चूज करना. सो योर फाइल नेम हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम. तो जैसे द फाइल नेम ओवर हियर वाज image underscore 01, so you have to make sure that your depth file also is image underscore 01 and there has to be underscore depth. So this becomes your, I'll go and I'll hit save and उसके बाद मैं करूंगा ओके. सो ये मेरा डेप्थ आ गया. नाउ इफ आई गो हियर, सो यहाँ पे मेरे दो इमेजेस आ गए, which is this RGB and the second is the depth. सो ये दोनों तो आ गए मेरे पास. नाउ हाउ टू मर्ज इट. इसको मैं मर्ज कैसे करूं. ये मेरा RGB था और ये मेरा डेप्थ था, राइट. तो आप लोग में से कोई बता पाएगा हाउ डू आई मर्ज इट, या फिर व्हाट कैन बी द नेक्स्ट प्रोसेस. और एल्स बिफोर आई स्टार्ट, कैन आई हैव सम चैट बॉक्स, कैन आई हैव सम आंसर्स फ्रॉम यू. हाउ मेनी ऑफ यू यूज फेसबुक. आप लोग में से कितने जन फेसबुक यूज करते हैं. Can we get some answers? I'm not able to see any answers. So एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, which was I don't know why मुझे चैट बॉक्स के आंसर्स कुछ दिख नहीं रहे हैं. I don't know if you're typing. अगर आप टाइप कर रहे हो तो I guess मेरे पास आने चाहिए, but somehow I'm not able to see. Anyways, so the reason मैंने आपसे ये पूछा why how many of you use Facebook, because we will be converting this जो हमारा image निकला, right? The entire image what we have got, we will be converting that to 3D inside Facebook. So what Facebook has done is Facebook has integrated its 3D engine, जहां पर आप ये दोनों इमेज अपलोड करते हो. सो फेसबुक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स दिस डेप्थ मैप एज योर 3D इमेज एंड इट स्टार्ट्स गिविंग टू ऐड अ डेप्थ. जैसा कि मैंने कहा 3D इज समथिंग बेसिकली जहां पर आपका डेप्थ रहता है. सो आई लॉग इन टू माई फेसबुक हियर. आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन. सो यहाँ पे देर आर इज एन ऑप्शन विच सेज फोटो और वीडियो. आई एम श्योर ये सब हमको मालूम है. सो आई विल गो टू फोटो एंड वीडियो एंड इनसाइड आउटपुट आपको दोनों इमेजेस सिलेक्ट
जैसा कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, I have selected both the images. And the next thing what I'll do is I'll say open. So ये आप देखोगे दोनों images मेरे अभी अपलोड हो रहे हैं. So आप यहाँ पर देखो तो क्रिएटिंग 3D फोटो, so इसने फेसबुक की इंजन ने ऑटोमेटिकली वो डेप्थ को 3D फोटो बनाना शुरू कर दिया है एज यू आर अपलोडिंग बोथ ऑफ देम. सो आप देखोगे यहाँ पर एक आपको ये दिख रहा है. सो इफ आई हिट पोस्ट, अगर मैं इसको पोस्ट करता हूँ, राइट, सो ये देखो मेरा पोस्ट हो गया और यहाँ पे एक आपके सामने आ गया दैट आई हैव एडेड अ 3D फोटो. सो इसको मैं गो हियर. सो आपको लगेगा कि ये जो किड था, ये जो बच्चा था, दिस किड वाज वेरी क्लोज टू आवर कैमरा विद अ नाइस बैकग्राउंड देयर, जो कि एक अच्छा सा डेप्थ हमारा क्रिएट हो रहा है एज वी हैव क्रिएटेड दिस डेप्थ मैप. ये और एक चीज में, इफ you are using smartphones, so 90% of the smartphone has a sensor which is known as gyroscopic sensor. So अगर आप Facebook का app, when you are using your Facebook app inside your mobile phone, then you will also be able to experience the same thing when you move your phone. So जब आप फोन को मूव करोगे अपने हाथों से, तो आपको वो इफेक्ट नजर आएगा आपके मोबाइल के स्क्रीन पे. अभी फिलहाल मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ. सो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, बट मोबाइल से भी आपको सेम इफेक्ट ही आएगा. विजुअल में फील करोगे, देन यू कैन ऑब्वियसली हैव दिस नाइस 3D आउटपुट. नाउ ये बहुत ही ज्यादा बेसिक था. आई विल मूव ऑन टू माय नेक्स्ट एग्जांपल ओवर हियर. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की ओर चलते हैं, which is for example maybe this. So जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, I have gone back to my Photoshop and there is a character who is sitting on the seashore over here. So यहाँ पर आप देखोगे एक sea है and there is one nice area where she is sitting. So what I do is, अगर मैं आप मेरा layers देखोगे यहाँ पर, so इसको अगर मैं ड्रॉ, एक हल्का सा कलर टोन मैंने दिया है, बैकग्राउंड है. तो मैं पहले सेव एज करूंगा एंटायर फाइल को. फाइल वुमन 2 ने ओके किया है. अब ये ग्रुप को मैं एक्सपैंड करूंगा यहाँ पर. सो दिस इज माय कैरेक्टर ओवर हियर, राइट. सो ये कैरेक्टर को सपोज अगर मैं रास्टराइज कर लेता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल जे करूंगा और सपोज इसको अगर जाऊं यहाँ पर, इफ आई सिलेक्ट दिस, सो इसको मैं यहाँ पर एक नया लेयर लूंगा ये सिलेक्शन के बेसिस पे, एंड आई विल मेक दिस एज व्हाइट. So this is my character जो कि which is very close from my camera. Then again I will be creating a layer over, so which will be of this sea maybe. इसको हम लोग रखेंगे maybe somewhere around slightly gray, ऐसा कुछ. एंड अगेन और एक मैं लेयर लूंगा which will be the sky. इसको हम लोग ये लेयर को थोड़ा सा हम लोग ऊपर करेंगे, बिकॉज आप देखोगे इसका लेवल यहाँ पर है, सो ये लेवल को हमको मैच करना है. या सो ये हो गया मेरा मेन कैरेक्टर. आई नेम दिस एज कैरेक्टर. As student, I would always suggest that you should always rename your layers. It becomes very easy for you to understand which layer you are working on.
दिस विल बी बीच, और यहाँ पर और एक मैं लेयर लूंगा, थोड़ा सा डार्क करेंगे, समथिंग लाइक दिस। सो ये हो गया मेरा डेप्थ मैप इसका, राइट। सो फर्स्ट व्हाट विल बी डूइंग इज, इसको ये inside output woman underscore depth. Please ensure when you are renaming your depth file name, there has to be underscore depth. और इसको हम सेव करेंगे सिर्फ वुमन के नाम से, अगेन इनसाइड जेपेग। देन हम यहाँ पे हिट करेंगे ओके, एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरा जेपेग का यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुला है, सो आई विल हिट ओके। सो अगेन इनसाइड माय आउटपुट आई हैव गॉट 2 इमेज। सो ये तो हो गया हमारा डेप्थ, और then was this RGB over here. Again, we have to upload this image on our Facebook engine. So मैं यहाँ पर जाऊंगा and again I'll go on photo and video, and ये दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे, and then I'll hit open. So ये ऑटोमेटिकली दोनों मेरे इमेजेस अपलोड हो रहे हैं, और आप कुछ देर के बाद देखोगे it will be starting its own 3D photo. It will be start creating its own 3D photo. So if you can see, आपको ये डायलॉग बॉक्स शायद दिख रहा है 3D का, उसके नीचे देयर इज अ टेक्स्ट व्हिच इज क्रिएटिंग अ 3D फोटो। हो गया यहाँ पर, एंड आई जस्ट हिट पोस्ट। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ सो आप देख, अच्छा डेप्थ दिख रहा है, राइट। जो कैरेक्टर है आपका, दिस इज बेसिकली नियर टू योर कैमरा, एंड ये जो सी है थोड़ा सा दूर है, एंड जो स्काई इज अगेन वेरी फार। सो दिस इज हाउ turn your 2D images to 3D, देखा भी होगा, right? So this is how actual your photo, a simple 2D photo, you can convert that into Photoshop. मेरा final output, I hope you guys have liked this. Now complex over here, ये तो चलो कि हम लोग के characters थे, but now I'll move on. If you can see this image over here, this is again an image which is having depth of field. Before I move on to my next image, या उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ अगर आपके कुछ questions हो तो please you can write down your questions. एक question आया हमको from भावना. So Bhavna is asking कि this is only done on FB only. Yes Bhavna, this is currently only done in FB. So अगर आप देखोगे so FB has integrated its own 3D engine जहाँ पर it is allowing audience to upload the normal image, जहाँ पर आप अपना एक नॉर्मल RGB इमेज अपलोड कर सकते हो, एंड उसके साथ आप डेप्थ भी वाला भी कर सकते हो। Okay, so we have got many. I hope my Ashutosh Pandey says that my audio is mute, but ऐसा तो नहीं, मेरा audio is very much clear, I guess.
एक क्वेश्चन, देयर इज वन मोर क्वेश्चन विच इज can this be done from done on Instagram? Because as I said, this has only been done in Facebook, as Facebook has integrated its own engine. I'm sure everyone is using Facebook in today's वर्ल्ड. सो ये एक नया ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड आई एम श्योर फोटोशॉप सभी को आता है, राइट? सो ये जब आप 3D के कोर्स में हमारे जाते हो, सो 3D में बाय डिफॉल्ट कुछ ऑप्शंस रहते हैं विच कन्वर्ट्स योर इमेज टू ऑटोमेटिकली इनटू डेप्थ. तो वहां से डेप्थ मैप या डेप्थ पास हम लोग बोलते हैं, वो आप जनरेट कर पाओगे. सो बट वो जो फाइनल आउटपुट है, जहां पर आपको लगे कि जो चीज मेरे कैमरा से क्लोज है उसको हमको वाइट रखना है, सो दैट इट बिकम्स वेरी क्लोज, और उसका एक आपको अलग सा डेप्थ आएगा. वी हैव गॉट वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम अरमान आलम. Arman is telling how I will know which color to choose among white, black and gray. Okay. So Arman, this completely depends. So for example, अगर हम ये इमेज का बात करें, as I'm sure आपको ये मेरा इमेज दिख रहा है जहाँ पे कॉफी मग है. So यहाँ पर अगर आप देखोगे, so जो चीज, the area which is very much close to your camera, which is this coffee mug, this will has to be very bright, right? And ये इसके बाद सॉरी, सो जो एरिया विच आर फार, दैट हैज टू बी ब्लैक. सो अगर आप समझ पाओ, अगर आपका एक मिड पॉइंट है जो कि कैमरा से पास और कैमरा के बहुत दूर, उसके बीच में अगर आपका कोई एक एरिया आ रहा है, इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट विच इज कमिंग और इज देयर एनी पार्ट ऑफ द इमेज दैट कैन बी कंप्लीटली टर्न्ड इनटू ग्रे, सो उसको आप ग्रे कर सकते हो. नाउ दिस इमेज व्हाई हैव आई चूजिंग इज बिकॉज ये एक बहुत ही मजेदार इमेज है, बिकॉज देयर इज अ सरफेस. सो सरफेस व्हेन आई से, मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर में ये कॉफी मग प्लेस्ड है. सो इसका ट्रीटमेंट हमको अलग करना पड़ेगा, राइट? सो ये थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए मैंने ये बाद में दिखाया. उसके बाद हम लोग और एक एडवांस इमेजेस देखेंगे विच विल बी दिस, जहां पर बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, एक और ये सेकेंड दिस. सो there is one more question which is just 1 minute. Which type of arts or concepts are popular in Photoshop nowadays? तो ये क्वेश्चन अब कृष्णेंदु जाना से है. कृष्णेंदु, आपका क्वेश्चन अगर थोड़ा सा क्लियर हो पाए, दैट विल बी वेरी गुड. Which type of arts or concepts are popular in Photoshop? So Photoshop has integrated many various new tools like object selection tool या फिर select subject. तो ये सब उनके नए फीचर्स या नए टूल्स में है. तो ये सब बहुत आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है, जहां पर आप अपना कैरेक्टर विद इन अ क्लिक आप उसको सिलेक्ट कर पाओगे, जैसा कि मैंने वो बेबी की इमेज में किया था, वो जो छोटा किड था. और एक क्वेश्चन है फ्रॉम चारू गोयल हु सेज कैन वी यूज दिस प्रोसीजर ऑन एनी टेक्स्ट एज वेल? सो ये अगर आप कोई टेक्स्ट प्लेस कर रहे हो, सपोज ये इसके ऊपर, सो वो आपका पूरा व्हाइट होना चाहिए, सो दैट आपको तभी वो इफेक्ट बाहर में आएगा. Now there is one more two questions rather for regarding to blur. That sir, the picture is going blur. How to make it clear from Prince Garg, and why after converting the photos 3D there is a blur effect? So as you can see, ये हम जब बहुत माउस को मूव करते हैं, राइट, बेसिकली ये 3D फोटो है नहीं, राइट? सो उसमें वैसा डेप्थ है नहीं. हम यहाँ पर व्हेन वी आर क्रिएटिंग दिस डेप्थ, हम लोग बाय फोर्स ये डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं. अगर मैं मेरे फोटोशॉप के स्लाइड पर जाऊं, यहाँ पर अगर आपको मेरा ये दिख रहा हो, व्हिच वाज द बेसिक थिंग. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर ऑलरेडी ये जो मेरा कोन है, यहाँ पर ऑलरेडी एक डेप्थ क्रिएट किया गया है इन अ 3D सॉफ्टवेयर, राइट? और इन अ 3D एप्लीकेशन, दैट कैन बी माया, इट कैन बी मैक्स, इट कैन बी सिनेमा 4D, और इट कैन बी इवन फोटोशॉप का जो 3D फीचर है वो उसमें भी हो सकता है. बट ये जो मेरा 2D है, इसको ही मैं फोटोशॉप में फोर्स कर रहा हूँ by not creating a depth over here. So basically मैं सिर्फ कलर फिल कर रहा हूँ मेरी ज्योमेट्री के ऊपर. That's why वो आपको ब्लर वहां पर दिखेगा, बिकॉज उसमें एक्चुअल में डेप्थ है नहीं. सो जब आप अपने कर्सर से ज्यादा मूव करोगे अपने माउस को, राइट, सो वो ब्लर आपको वहां पर दिखेगा ही, बिकॉज उसमें एक्चुअल में डेप्थ नहीं है, एंड बाय फोर्स वी आर क्रिएटिंग दैट डेप्थ थ्रू द फेसबुक इंजन.
So I hope I am answered all your questions. There is one more question from Shubham Kumar who says, can we download it from FB and upload it on Instagram? No, you cannot do that because Instagram के पास वो 3D engine नहीं है. So Instagram will not be able to calculate if that image is a depth image or if that image is RGB image. So वहाँ पे it will be considering or treating that image as a single image only. Is it necessary? We have a very good question again from Satviki Saxena who says, is it necessary to take only a portrait pic for using this effect? It is not necessary for taking a portrait pic, but suppose अगर आपके image में, if there is an image, so if there is a differentiation between your character or the main subject and the background, then only you will be able to add that depth. अगर आपका image flat है तो शायद आपको वो depth वो feel नहीं आएगा. You can always try. अगर आप के पीछे अगर वो depth नहीं है वो image में और आपके पीछे अगर वो flat image है, you can always try to color the flat area or the area which is in background with a darker shade, and then you can always check. बट अगर जनरली आज के टाइम पे अगर हम कुछ भी इमेज लेते हैं, वेदर अगर वो फूड का हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट का हो सकता है, आपके टेबल का हो सकता है, बाहर का हो सकता है, तो जिसमें जनरली एक डेप्थ रहता ही है. So there is again a question which is, can I convert 2D square into a 3D square? Yes, you can always do that. So that can be covered in the 3D module. But यहाँ पर मैं 3D shapes के ऊपर नहीं सिखा रहा हूँ कि how to create a 3D shapes. So that can be always done in a 3D application by Sanji Agarwal. I hope I've answered all of your questions, and I'm moving ahead now. So I'll go back here and I will take this image. And as you can see, this is the coffee image over here. इसको हम सबसे पहले Ctrl J करके duplicate करेंगे, right? उसके बाद हम इसको table को select करेंगे. So the reason when you are working with these sort of images, the first thing which has to be kept in mind is that you have to first select your surface. So when I say surface मतलब ये होता है जिसके ऊपर मेरा कोई object placed हो, तो उसके basis पे ही हमको पूरा इमेज या पूरा डेप्थ उस हिसाब से ही हमें क्रिएट करना होगा. सो ये मैंने एक क्रिएट किया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लूंगा. सो ये हो गया मेरा टेबल, और इसको हम वापस मैं P प्रेस करूंगा तो मेरा पेन टूल आ जाए. राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन. जैसे कि मेरा मेक सिलेक्शन आ गया, और यहाँ पर जो फेदर का रेडियस है विच इज 8, विच इज वेरी हाई, सो मुझे उतना नहीं चाहिए. I'll maybe make this to maybe 1.5 and then I'll hit OK. So ये जब आपका हो जाता है तो ऐसी आपकी लाइन से सबको मालूम है कि कैसे हम सिलेक्ट करते हैं. बट यहाँ पे जो आपको करना है, यहाँ पर हम एक फ्लैट कलर नहीं गिराएंगे, बिकॉज अगर आप ये चीज देखोगे, जैसा कि एक टेबल है, तो यहाँ पर जो मेरे पिक्सल्स है वो थोड़े से व्हाइट रहेंगे और ये थोड़ा सा हल्का सा ग्रे टोन रहेगा, बिकॉज ये कैमरा से दूर होता जा रहा है मेरा टेबल. तो इसलिए आप चले जाओ यहाँ पर ग्रेडियंट टूल, और यहाँ पर कि मेरा व्हाइट और ब्लैक ही सिलेक्टेड है. एक बार स्टिल आप चेक कर लो वो आपका ऐसा येलो या ऑरेंज ना हो. इट हैज टू बी व्हाइट एंड ब्लैक. ओके, और फिर देन यहाँ पर वापस आप कर दो इसको ओके. देन यू हैव टू, from your gradient you have to do something like this. So on this selection you are getting a tone of both white, gray and dark gray. So I would like to have a tone of white and gray only. So ये मेरा ठीक है, या फिर अगर हम कुछ और एक्सप्लोर करना चाहे तो ये मेरा ठीक है. राइट, सो दिस इज द टेबल. इसको मैंने रीनेम कर दिया टेबल. Now इसको एक बार के लिए you can turn this off, then again come here and I will select my object selection tool, जिसके थ्रू मैं ये कॉफी मग को सिलेक्ट करूंगा.
and my coffee mug has been selected at a go, very quickly, very nicely, and बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा कॉफी मग सिलेक्ट हुआ है। जस्ट मैं फाइनल टचअप कर रहा हूं सो दैट मेरा सिलेक्शन काफी अच्छा हो। सो ये मेरा कॉफी मग का सिलेक्शन हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू इज, एक मैं नया लेयर लूंगा और ये टेबल के लेयर को मैं नीचे रखूंगा। अब बहुत ही ध्यान से सुनना, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस कलर, दिस लेयर टू व्हाट आई हैव सिलेक्टेड, which is currently selected, has to be exactly of the same color जो कि मेरे टेबल के यहाँ पर आ रहा है। सो दिस एंड दिस हैज टू बी मैच्ड। अगर आपका जो कॉफी मग है, इफ दिस इज सिलेक्टेड राइट नाउ, इट कैन नॉट हैव अ कलर व्हिच इज राइट अप हियर, it has to be exactly the same what we have getting in this particular area. So the best thing what I suggest is you can always take your eyedropper tool, shortcut is I। ये रहा मेरा eyedropper tool सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ से मैं ये कलर को पिक करूंगा जूम करके। ये मैंने कलर पिक किया और ये मैंने ऑल्ट और बैक स्पेस किया और मेरे कॉफी मग में ये कलर आ गया। सो हमको यही प्रोसेस में सिलेक्ट करना है, राइट। बट अगर अगेन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कुछ कुछ एरियाज जो है यहाँ पर छूट गया है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मैनुअली सिलेक्ट दिस एंड यू कैन एक्चुअली ब्रश दिस। आप ब्रश से ही इसको पेंट कर सकते हो ऑन द सेम लेयर। So you have to make sure that आपका ब्रश का जो कलर है वो एग्जैक्टली सेम है। तो इसको मैं अगर चाहूँ, इसको मैं सिलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपैंड भी कर सकता हूँ बाय मे बी 1 पिक्सल और मे बी 0.5, आई डोंट नो 0.5 लेगा कि नहीं, इट हैज टू बी 1 एंड देन आई कैन फिल विद दिस कलर। सो मेरा ओवरऑल एक ये फिल हो गया। सो ये था मेरा कॉफी मग, कॉफी अंडरस्कोर मग, और ये है मेरा डेप्थ। सो जैसा कि मैंने कहा, यू हैव टू मेक श्योर द कलर विच यू आर सिलेक्टिंग फॉर योर ऑब्जेक्ट और फॉर योर subject over here has to be exactly the same what our table is at that particular point। चलिए टेबल को भी मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा। I'll just save this file on my computer so that it doesn't get scratched। I'll name as coffee underscore mug। देन हम एक यहाँ पर कैरेक्टर देख रहे हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन था कि हाउ टू नो कि कैसे हम लोग उसको वाइट रखे या ग्रे रखे या ब्लैक रखे। सो ये टेबल के ऊपर आप और एक लेयर ले लो, टेबल विल बी द लास्ट। उसके यहाँ पर एक मैंने लेयर लिया है। सो अगेन फ्रॉम माय ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आई विल सिलेक्ट दिस लेयर और दिस कैरेक्टर ओवर हियर। तो मेरा पूरा कैरेक्टर यहाँ पर सिलेक्ट हुआ और देन इसको मैं क्विक सिलेक्शन टूल से इसको जस्ट यहाँ से इसको रिमूव करूंगा सो दैट मेरा बैकग्राउंड ना आए एंड दिस इज माय एंटायर कैरेक्टर ऑल्सो ऑन दिस। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम आवर क्विक सिलेक्शन टूल। इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट मॉडिफाई जाऊंगा और एक्सपैंड करूंगा बाय 2 पिक्सल्स। थोड़ा सा और इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे बाय 2 अगेन। तो ये मेरा एंड यहाँ पर इसका जो कलर रहेगा दैट विल बी डार्कर देन दिस ग्रे टोन। सो यहाँ पर आप इसको पहले चूज कर लो, ये चूज हुआ। देन यू कैन कम डाउन स्लाइटली beneath over here, which can be maybe this, and then I'll hit Alt and delete। so ये मेरा कैरेक्टर भी यहाँ पर सिलेक्ट हो गया।
Then again हम एक नया layer लेंगे यहाँ पर. So this layer placement is also very important. I name this as character CHAROOF, which means out of focus. So ये layer 3 को आप नीचे डालो and और एक हम rectangular marquee tool से और एक area लेंगे which will be more darker here. And इसको हम fill कर देंगे with this. So ये बन गया मेरा depth map over here. So ये table है, ये मेरा coffee mug है. This is the character over here and this is the background. So first इसको हम group कर लेते हैं. ये हो गया मेरा depth and ये हो गया मेरा layer 1. So first इसको हम save करेंगे, save as, save on a computer. Output के अंदर हम इसको rename करेंगे coffee_mug and then I'll go to JPEG for this. I'll say save, I'll say okay, and then अब मैं यहाँ पर आऊँगा. I will be turning on my depth layer. So file, save as, save on your computer. यहाँ पर एक चीज what we have to keep in mind is we have to rename this coffee_mug by adding underscore depth, and then I'll hit save. So यहाँ तक clear है? Any questions यहाँ पर? Any questions till now? Facebook ऐप में 3D पिक्चर दिखाई देगी? Yes, अगर Facebook ऐप अगर आप मोबाइल से ये करोगे देन आपको वो दिखाई देगी. Which is why do you expand the pixels? मैंने pixels इसलिए expand किया था because मुझे जो मेरा ये था कैरेक्टर था उसको पूरा कवर अप करना था. So if I just go here, अगर मैं मेरे कैरेक्टर के पास जाऊं तो ये है मेरा लेयर 1 और ये है मेरा कैरेक्टर आउट ऑफ फोकस. सो इसलिए मैंने इसको एक्सपेंड किया था सो दैट ये पूरा कैरेक्टर मेरा सिलेक्ट हो जाए. और देन उसके ऊपर मैंने किया नॉर्मल सा कलर, एक फ्लैट कलर एक मैंने उसके ऊपर फिल किया. It's good that we are getting so many questions. Why I am using sorry, I can't read your question. From Arman Alam. Arman, can you please type your question again? Because आपका क्वेश्चन सिर्फ यही है why we are saving image using dash. So अभी तक उसके आगे कुछ आया नहीं है. लेयर प्लेसमेंट का क्वेश्चन है. So और एक क्वेश्चन है from Rahul Kaushal who is saying we have to make a selection exactly. So yes, you have to make the selection exactly. आपको सिलेक्शन आपका प्रिसाइज होना चाहिए तभी जाकर आपको जैसा कि आउट ऑफ फोकस था तो ये आउट ऑफ फोकस में जो चीजें हैं थोड़ा सा आपको अगर प्रिसाइज आपका नहीं भी हुआ तो भी चलेगा. इसलिए मैंने सीधा सिलेक्ट में जाकर एक्सपैंड कर लिया. Why are there is a very again there is a very good question from Arman Alam. Acha, before Arman, Rahul, I think I've made your question answerable, which was we have to make selection exactly. Now the next question is by Arman Alam. Why are we saving image using underscore? Very good question. The reason why we are saving this underscore because if we do not use underscore depth, ठीक है, अगर हम ये अंडरस्कोर डेप्थ यूज नहीं करेंगे देन देयर माइट बी चांसेस कि फोटोशॉप का जो इंजन है, सॉरी फेसबुक का जो 3D इंजन है, 3D इंजन ऑफ फोटोशॉप माइट नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट इमेज व्हाट यू आर अपलोडिंग दैट दिस इज अ डेप्थ इमेज. So that's the reason we are renaming that file as underscore depth. I hope I am clear. Any other more questions or can we upload it on Facebook?
Can we use more shades of gray so that more detailing can be given? Yes, Rahul, you can always use more shades of gray. जैसा कि if you see my image, ये image में there was a wall also, right? So ये आप जितना depth डालोगे उतना ज्यादा आपका image में वो depth आएगा. If I just turn off all these layers, so there was this area also. So this and again this, so this completely आप जितने ज्यादा ग्रेस और जितने ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में जितने ज्यादा ये डालोगे उतना ज्यादा आपका डेप्थ आएगा. So I'm moving on to my Facebook again. Why depth map is always created by only using grayscale? So we have this question from Tanmay Ganeshan. So Tanmay, we use, as I said in the beginning of this session, that you have to create your depth map using black and white only. तभी सॉफ्टवेयर या तभी अगर आप इवन इफ यू डू कंपोजिटिंग, लाइक यहाँ से इफ यू टेक एनी फाइल्स व्हाइल वी आर वर्किंग ऑन 3D सीन, राइट, जब आप कुछ 3D सीन पे काम करते हो एंड जब आप उसको अलग अलग लेयर्स में अलग अलग पासेस जब कंपोजिट करना चाहते हो, मे बी टू न्यूक और टू आफ्टर इफेक्ट्स एनी कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर, तो वहां पर आपको जो डेप्थ इमेज दिखता है उसमें भी ब्लैक और व्हाइट ही रहते हैं. So this is basically the colors or the shades from your black to white. So I'm moving on to Facebook again, and यहाँ पर मैं जाता हूँ फोटो एंड वीडियो में, एंड दिस इज कॉफी मग. कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको भी सिलेक्ट करूंगा, कॉफी मग अंडरस्कोर डेप्थ, एंड again if you see, it has started creating this 3D photo. अगर आपको वो मेरा क्यूब दिख रहा है, तो इसको मैं करूंगा पोस्ट, और इसको हम लोग देखेंगे बड़े स्क्रीन पे ऑन अ मैक्सिमाइज्ड व्यू. ये चीज अगर आप सेम चीज है रिपीट अगर आप अपने फोन पे देखते हो तो आपको वो, अगर आपके पास गायरोस्कोप सेंसर है तो आपको वैसा वो दिखेगा. नाउ इफ यू सी दिस, ये एक्चुअल में आपको लग रहा है कि ये जो आपका व्यू है कैमरा का, दैट योर कॉफी मग इज एक्चुअली नियर टू योर कैमरा, एंड आपको वो डेप्थ जो है वो एक्चुअल में दिख रही है, और आपका एक कैरेक्टर भी अलग सा स्टैंड आउट कर रहा है. So I am able to see a very nice depth इसमें, because इसलिए हम लोग ने सरफेस के ऊपर काम किया, because again this adding depth to surface is really very important. मैं इसको और थोड़ा सा मूव करता हूँ so that you get a nice view over here. तो आप देख पा रहे हो जैसा कि कैसा एक स्टिल इमेज था वो, जो अब हम लोग ने फोटोशॉप का इमेज उसमें जब इंपोर्ट किया था, तो वहां से लेकर यहाँ तक हमारा जो ट्रांजिशन पीरियड था फ्रॉम 2D टू 3D, अब हमारा ये जो फाइनल आउटपुट है ये कुछ ऐसा दिख रहा है. तो ये आपको एक्चुअल में वैसा फील आएगा दैट दिस इज एक्चुअली अ 3D इमेज, एंड आपको इसका जब आप इसको मूव करोगे इन योर मोबाइल फोन और योर डेस्कटॉप, तब आपको एक्चुअल में लगेगा कि दिस कॉफी मग वाज एक्चुअली क्लोजर टू योर कैमरा. So we have got some more questions. First is from Suraj Singh. Sir, आपने कैरेक्टर को ही क्यों सिलेक्ट किया? आप सेकेंड लेयर पर बैक में गेट को भी ले सकते थे.
यस, मैं गेट को भी ले सकता था। अगेन गेट को अगर मेरे को लेना था तो मुझे एक अलग सा उसको चूज करना था गेट को, कि जो इसका कोलैप्सिबल गेट है जैसा कि आप देख पा रहे हो, बट अगेन इसमें बहुत सारे स्पेसेस हैं, तो वो स्पेसेस को भी आपको कवर करना है। एंड यू कैन ऑलवेज ट्राई दिस अगर आप इसमें और थोड़ा सा डार्कर शेड देते हो, बिकॉज अब जो शेड आप यहाँ पर दोगे दैट हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम योर शेड विच इज दिस कैरेक्टर। तो ये थोड़ा सा और डार्क रहेगा, उसके बाद आपके पीछे का बैकग्राउंड रहेगा। तो आप जितने डिटेलिंग दोगे उतना ज्यादा आपको डेप्थ नजर आएगा इसके ऊपर। We have got more questions from Rahul Kaushal, who says, as I can see, there is some problem in the character mask. कैरेक्टर को हम लोग ने मास्क नहीं किया है राहुल यहाँ पर। कैन वी सॉल्व दैट? कैरेक्टर को मैंने एक बार भी कहीं भी मास्क नहीं किया है। ये थोड़ा सा अगर आपको जो यहाँ पर एजेस आ रही हैं, दैट इज बिकॉज कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस है हमारा ये जो एरिया है, एंड दिस इज मे बी कि हम लोग ने और इसको थोड़ा सा अगर हम एक्सपैंड करते तो वो प्रॉब्लम चला जाएगा। इसलिए अगर आप देखोगे मैंने 2 बार इसको एक्सपैंड किया। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा 1/1 पिक्सल का फेदर अगर आप डालोगे और इसको और थोड़ा सा एक्सपैंड करोगे अगेन बाय 1 पिक्सल और 2 पिक्सल्स, तो ये आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो शायद चला जाए। अगेन एज आई सेड, हल्का सा आपको ब्लर दिखेगा, राइट, बिकॉज हम एक इसके ऊपर एक अलग सा ही एक फेक डेप्थ ऐड कर रहे हैं। सो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप कितना मूव करते हो अपने इमेज को। अगर जैसे कि मेरा यहाँ पर अगर आप ये फ्रेम देखोगे तो दिस वाज द ओरिजिनल एंगल ऑफ माय इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी ये नहीं आ रहा है, जो पीछे ब्लर या कुछ नहीं आ रहा है, बिकॉज दिस वाज माय ओरिजिनल एंगल। सो अगर आप इसको एकदम एक्सट्रीम में मूव करते हो तो आपको देखोगे आपको यहाँ पर ब्लर आएगा। फिर आपको कैरेक्टर के यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे मेरे माउस कर्सर को ऑन, प्लीज यहाँ पर आप देखना कैरेक्टर को, तो आपको यहाँ पर आएगा। बट इसका आप ओरिजिनल अगर इमेज देखोगे विच वॉज ये, तो ये मेरा ओरिजिनल इमेज है यहाँ पर। तो आप जितना इसको एक्सट्रीम में मूव करोगे उतना आपको ज्यादा ब्लर दिखेगा। देयर इज वन मोर थिंग व्हिच सेज सर आई कैन सी द शैडो ऑफ द ग्रे एरिया ऑफ द कैप। वो शैडो वो एक्चुअली में शैडो नहीं है, दिस इज ऑफ द सिलेक्शन, बिकॉज वो पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ था। और अगर हम उसको 1 पिक्सल या 2 पिक्सल ज्यादा सिलेक्ट करते तो शायद वैसा आता, वो आपको नजर नहीं आता। There is one more question which says, sir, can we completely remove the blur? No, there is no solution to this that you can completely remove the blur, because as I said, आप जितना मूव करोगे अपने ओरिजिनल कैमरा एंगल से उतना ब्लर आपको दिखेगा। दिस इज रियली वेरी ट्रेंडिंग दीज डेज। आप बहुत सारी कंपनीज देखोगे, मे बी बहुत सारी कंपनीज और द ऑर्गेनाइजेशंस हु वांट टू मार्केट देयर प्रोडक्ट, जो अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, राइट। सो वो लोग भी ये चीज यूज कर रहे हैं, जैसा कि आई वुड टेक एन एग्जांपल। लास्ट ईयर देयर वाज अ कंपनी व्हिच हैड यूज्ड इट्स प्लेयर्स, तो उनके अलग अलग प्लेयर्स थे, तो उन्होंने अलग अलग प्लेयर्स का कटआउट करके उन्होंने उसको पब्लिसाइज किया था। तो अगेन आप जितना उसको मूव करोगे, राइट, तो उतना आपको वो ब्लर आपको वो आएगा ही। नाउ देयर इज वन ट्रिक टू कवर अप दिस ब्लर इज, इफ यू वांट यू कैन ऐड सम, आपके ओरिजिनल इमेज ही अगर ऐसा हो जिसमें हल्का सा पीछे व्हाइट कलर का स्मोक या कुछ व्हाइट कलर का अगर आप एलिमेंट डालते हो, तो उससे आपका जो ब्लर है वो समझ में नहीं आएगा। बट अगेन आई सेड, आप जितना एक्सट्रीम इसको मूव करोगे, अभी मैं बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम मूव कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, इसलिए आपको ये ब्लर जो चीज है वो आपको दिख रही है। So, are we good to go? Any other questions? There is one more question from सूरज सिंह which says, सर क्या हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को यहाँ पर 3D में दिखा सकते हैं? यस। तो अगर आप देखोगे ये जैसा मेरा कॉफी मग था, राइट, अगर आप मेरा ये इमेज देखोगे तो यहाँ पे मेरे 2 ऑब्जेक्ट्स है, एक है मेरा कॉफी मग यहाँ पर और एक है मेरा ये बुक, राइट। सो अगर मान लो इसके ऊपर अगर स्ट्रॉबेरीज या और कुछ भी रहता है तो इसको भी आप आराम से कर सकते हो ना। इसका कंसेप्ट सेम रहेगा, सरफेस के साथ आपको इसका कलर मैच करना है, तो ये आप आराम से एक से ज्यादा इसके ऊपर आप काम कर पाओगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर पाओगे। राहुल सेज नो क्वेश्चन मोर, और आई होप आई वाज एबल टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एज ऑफ नाउ, अभी तक जितने भी थे।
डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल मैप एंड बम्प मैप इन फोटोशॉप फॉर 3D। यहाँ पर मैं आपको मैप्स के बारे में, सिर्फ डेप्थ के बारे में बता रहा हूँ। सो बम्प मैप और नॉर्मल मैप, आई गेस आप ये अपने 3D के ट्रेनर से ही पूछोगे तो वो बेटर रहेगा, बिकॉज दैट इज मोर ऑफ 3D कॉन्सेप्ट व्हेन यू आर लर्निंग इट इनसाइड अ 3D एप्लीकेशन। यहाँ पर एग्जैक्टली जो आज का मेरा जो टॉपिक है, विच इज कंप्लीटली मैं फोटोशॉप के आधार पे ही, फोटोशॉप बेस्ड ऑन फोटोशॉप ओनली आई विल बी जनरेटिंग दैट फेक डेप्थ। If you want to create this depth, that can be easily be done in any of the 3D applications. वो आप आराम से डेप्थ निकाल पाओगे उसका inside a 3D application. So moving ahead, now we will be working with this image. और यहाँ पर आप देखोगे तो multiple objects हैं. So I'll just close all these. So there is a nice option in Photoshop. जैसे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, राइट, दिस इज द ब्लैक कॉपी, मुझे इसके ऊपर काम करना है। सो अगर आप फाइल के ऊपर जाओगे, मुझे एक एक पकड़कर क्लोज नहीं करना पड़ेगा। देयर इज एन ऑप्शन इनसाइड CC 2020, जो कि मेरा लेटेस्ट वर्जन है ऑफ फोटोशॉप। सो दिस सेज फाइल क्लोज अदर्स। तो जैसे मैं ये करूंगा, ऑटोमेटिकली मुझे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, मुझे इसको सेव करना है या नहीं। इसको मैं कर देता हूँ यस, इसको मैं कर देता हूँ नो, मुझे ये सेव नहीं करना, इसको भी नो। सो ऑटोमेटिकली सब बंद हो गए और मेरा सिर्फ ये इमेज यहाँ पर ऑन हो गया। अगर वो मेरे फाइल सेव रहते इन फोटोशॉप तो मुझसे वो पूछता भी नहीं, ऑटोमेटिकली वो क्लोज कर देता। तो अगेन लेट अस वर्क ऑन दिस इमेज ओवर हियर। इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा, एज आई डू नॉट वांट टू चेंज माय ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द लेयर। और यहाँ पर भी अगर जैसा कि आप देख पाओगे, यू आर गेटिंग अ नाइस टेबल। सो फर्स्ट इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही ज्यादा ब्लर्ड है, तो उस हिसाब से मैं फेदर डालूंगा। यहाँ पर हार्ड एजेस हैं मेरे और फिर सॉफ्ट एजेस भी हैं। सो पी मैंने अगेन चूज किया, राइट क्लिक, मेक, सॉरी, उप्स, मेरा सिलेक्शन चला गया। सो अगेन क्विकली मैं इसको सो अगेन पी, राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन। इसका जो फेदर है मैं इसको दूंगा मे बी 4, देन आई विल हिट ओके। सो ये मेरा टेबल आ गया यहाँ पर। इसको अगेन आई वुड लाइक टू एक्सपैंड दिस। सो अगेन यहाँ पर अगर आप देखो, सिर्फ इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहूंगा, सिलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपैंड, एंड आई विल टेक दिस टू मे बी 4। तो ये और थोड़ा सा मेरा एरिया एक्सपैंड हुआ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक नया लेयर लेंगे, हम ग्रेडियंट लेंगे, और अगेन द एरिया विच इज नियर टू माई कैमरा, विच इज क्लोज टू माई कैमरा, हैज टू बी व्हाइट, एंड द एरिया विच इज फार फ्रॉम माई कैमरा हैज टू बी डार्क। सो इसको मैंने ऐसा कुछ लिया। सो ये मेरा टेबल हो गया। यहाँ पर मैंने हल्का सा, यहाँ पर आप देखोगे बहुत ज्यादा व्हाइट लिया और यहाँ पर मीडियम ग्रे लिया है, बिकॉज मैं डार्क ग्रे डालना चाहूंगा मेरे विंडो के पेंट्स पे, जो कि मैं अगेन अलग से सिलेक्ट करूंगा और उसके पीछे मेरा वो बैकग्राउंड रहेगा। सो दिस इज माई टेबल। मैंने उसको जस्ट रीनेम किया। अगेन थ्रू माई ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मैं जाऊंगा, ये कॉफी मग को सिलेक्ट करूंगा। सो मेरा कॉफी मग आप देखोगे बहुत ही 80% से 90% मेरा काम हो चुका है यहाँ पर। और इसने जो यहाँ पर जो स्पेस है, जो गैप है, उसने उसको भी एक्सक्लूड किया है। सो आई जस्ट गो हियर, इसको ये कुछ पोर्शन को मैं
डीसिलेक्ट और डीसिलेक्ट करूंगा। अगर आप एकदम एग्जैक्ट और प्रिसाइज आउटपुट चाहते हो देन यू कैन ऑलवेज यूज पेन टूल, अगर आपको एकदम एग्जैक्ट और प्रिसाइज ये चाहिए। बट यहाँ पे मेरे पास टाइम की कमी होने की वजह से आई एम यूजिंग ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जो कि वो भी अराउंड 80% प्रिसाइज रिजल्ट हमें देता है। सो सपोज दिस इज माई कप। अगेन इसको मैं ऑन करूंगा, एक मैं नया लेयर लूंगा यहाँ पर। इन द सेम वे आई विल टेक आई ड्रॉपर टूल, इसको मैंने यहाँ पे चूज किया ऐसा, और इसको मैंने यहाँ पर फिल किया। सो ये मेरा कप हो गया, और इसको जस्ट अभी के लिए मैं टेबल को ऑफ करता हूँ। आई विल गो हियर अगेन, और कुछ एरिया मेरा जो यहाँ पर है, या फिर इफ आई वांट, ये बहुत मुझे जैक्ड नजर आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा फेदर ले लेंगे। सिलेक्ट मॉडिफाई फेदर मे बी 1 पिक्सल, और इसको हम फिल कर देंगे यही कलर के साथ जो कि मेरा सिलेक्टेड है। और I'll go to my cup again. I'll rename this as cup. And going inside cup, I will go here and इसको मैं थोड़ा सा पेंट करूंगा with my brush tool. So मैंने opacity थोड़ा सा कम रखा है, और अब मैं इसको पेंट कर पाऊंगा। So ये हो गया मेरा कप, और ये हो गया मेरा टेबल। Now we also have this book over here. So ये बुक को हम सिलेक्ट करेंगे। From pen tool only. इसको पहले मैं करूंगा मेक सिलेक्शन, और इसमें मैं दूंगा मे बी 2 फेदर। Will select, maybe modify, expand again by maybe 2 pixels or maybe 4. So ये हो गया मेरा सिलेक्शन ओवर हियर। अगेन टर्न ऑन द टेबल, एक मैं नया लेयर लूंगा यहाँ पर, और इसको मैं फिल करूंगा विद दिस कलर। ऑल्ट बैकस्पेस। सो ये मेरा सिलेक्ट हुआ। I'll save this file, coffee_multiple। तो ये मेरा PSD मैंने सेव किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ कुछ एरियाज अगेन यहाँ पर बुक्स के जो है वो, ये बुक का जो है वो छूट जा रहा है, और इट इज नॉट बीइंग फिल्ड अप। सो व्हाट कैन बी डन इज
you can go to feed transform over here, or if you hold down your shift, so it will scale from your middle. To ensure that all the areas are being selected. Again, brush ले लो अगर आपको चाहिए तो, so just select, go here and select this. हार्डनेस मैंने कम किया है बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा फेदर है. So ये हो गया मेरा book. Now again if I go here and ये जैसा कि पेन्स आप देख पा रहे हो, राइट, इफ आई डू समथिंग फ्रॉम माय क्विक सिलेक्शन टूल, अगर मुझे बहुत जल्द सिलेक्शन करना है, बट ये काम नहीं कर रहा बिकॉज इसके बीच में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है. इफ वी सी फ्रॉम माय image, because the background is also having a lot of blur and out of focus. ये थोड़ा सा this is time consuming. अब इसको हम थोड़ा सा we will be adjusting this. I'm sure pen tool आप लोग सबको आता है. You guys are already aware of this pen tool. So ये हो गए मेरे विंडो पेन्स. So इसको, these are my window panes. I'll just go here, right click, make selection, and I'll make this feather to maybe 4. I'll hit down OK, or इसको we will be giving a darker tone from this. So I've selected this color. And this is what will look like over here. And I'll take one more layer over here, and I will, from my mark you tool, rectangular mark you tool over here, इसको मैं थोड़ा सा, I'll give a darker tint. So if you see, our depth map has been created here, and this exactly looks like a depth map. And this coffee mug over here, this book over here has to be matched with your table or the surface. This is the idea of your window pane, what we have created. So just save this once again. Any questions? What if we give more feather to the selection? If you give more feather to the selection, there might be chances
जो कि फेदर आप जितना ज्यादा दोगे देयर माइट बी चांसेस कि एक बाउंड्री या एक एजेस आपको आप जब आप फेसबुक पे डालोगे, जब आप कन्वर्ट करोगे उसको इनटू अ 3D इंजन और इनटू अ 3D इमेज, हो सकता है वहां पर आपको वो चीज देखने मिले। तो दैट्स व्हाई जब आप फेदर करते हो, और ऑल्सो वो ब्लर को बहुत ज्यादा इनहेंस और इंक्रीज कर देता है when you are adding much more feathers. So I always like to keep my feather between 1 or 2 pixels. ये GIF इमेज के साथ वर्क करेगा क्या सर? आई एम नॉट अवेयर, आई हैव नेवर ट्राइड विद GIF, जो any of the GIF image. I've never tried this. I've always tried in a JPEG or a PNG. There is one more question again from Rahul who says, what if we, तो भी हम लोग आज करके देखते हैं वो कैसा होता है exactly, right? So इसको ही suppose यही image है. Let us try an experiment. If I save this as coffee underscore multiple underscore 2. Now let us do exactly the reverse thing, which means Rahul means to say that जो चीज मेरे कैमरा से क्लोज है वो रहेंगे ग्रे, राइट? जो एरिया मेरे इससे हैं वो रहेंगे व्हाइट। सो पहले हम इसको अपलोड करते हैं ऑन फेसबुक, द नॉर्मल थिंग व्हाट वी हैव क्रिएटेड, फाइल सेव एज, इसको मैं जाता हूँ सेव ऑन माय कंप्यूटर एंड आउटपुट में गया मैं COF, इसका मैं दिस एज दिस इज माय डेप्थ, सो COF अंडरस्कोर डेप्थ JPEG, सेव, ओके। अब हम नॉर्मल को सिलेक्ट करेंगे, सेव एज, COF, अगेन हिट सेव। सो ये मेरा सेव हो गया यहाँ पर, राइट? इफ आई गो टू माय फेसबुक हियर, इफ आई गो टू फोटो वीडियो and COF and COF underscore depth. So it has started creating the 3D photo. अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने फेदर का अमाउंट शायद 3 या वो रखा था, तो आपको एक हल्का सा यहाँ पर ब्लर नजर आ रहा है, राइट? बिकॉज यहाँ पे फेदर का अमाउंट बहुत ही ज्यादा था। बट अगेन आप अगर कॉफी का मेरा देखोगे तो यहाँ पर मुझे ब्लर नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर मैंने फेदर डाला नहीं था उसका। तो एज आई सेड, एक अभी जो जस्ट क्वेश्चन था फेदर का अमाउंट को लेकर, राइट? सो द हायर द अमाउंट ऑफ फेदर द मोर इट विल बी ब्लर्ड। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, सो दिस कॉफी मग ओवर हियर इज एक्चुअली लुकिंग like this is closer and this book is actually looking as it is far. So but yahan par again we have got given a huge amount of feather, that's why it is not looking so good. I'll take you to one more image over here. I'll just go here and I've got the same thing but दिया नहीं था, so वहां पर आपको वो दिखेगा। सो ये था हमारा इमेज और ये था मेरा दिस थिंग। सो अगर हम लोग इसको अपलोड करते हैं, सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। सो यहाँ पे मैं वापस जाऊंगा फोटो वीडियो और इसका मैं लोकेशन यहाँ पर सेट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने डेप्थ उतना डाला नहीं था, सो मिरर एंड मिरर अंडरस्कोर डेप्थ।
नाउ ये रीजन द टॉपिक मैंने आज इसको क्यों चूज किया है बिकॉज जब अभी सपोज देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स हु आर इन देयर ग्राफिक मॉड्यूल जो कि टर्म 1 में है, राइट? सो आप कल को जब टर्म 2 में जाओगे, राइट, सो वो आपके लिए बहुत काम की चीज होगी बिकॉज आप डेप्थ मैप के साथ भी काम करोगे, या प्लस जब आप कंपोजिटिंग सीखोगे इन न्यू के आफ्टर इफेक्ट्स, सो अगेन डेप्थ के साथ आपको, सो दिस इज अपलोडिंग, ये अपलोड हो रहा है। एंड अब ये 3D में प्रोसेस हो रहा है। तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो मेरा फेदर का अमाउंट था वो कि कम था कंपेयर टू अभी जो मैंने उतना डाला था। और अगर आपको हो सकता है कि कप के ऊपर आपको नजर आ रहा हो कि थोड़े से जैक्ड एजेस हैं, जैसा कि हम जब सिलेक्ट कर रहे थे तभी वो जो जैक्ड एजेस थे, अगर आप उसको पेन टूल के थ्रू पूरा अच्छे से सिलेक्ट करते हो वेरी प्रिसाइजली, देन फिर आपको वो नजर नहीं आएंगे। सो ये एक था। नाउ एज वी हैड वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स व्हिच वाज कि व्हाट इफ वी डू द इनवर्स। सो अगर आप देखोगे मेरा करंट इमेज जैसा कि मैंने ओपन किया है, दिस वाज द आरजीबी, दिस वाज कि पूरा उल्टा हो रहा है ये यहाँ पर। सो जो मेरे एरियाज हैं, राइट, व्हिच आर फार टू माय कैमरा, दे आर लाइट एंड द एरियाज व्हिच आर क्लोज टू माय कैमरा आर डार्क। सो लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोरिंग कि इससे होता क्या है। सो अगेन आई विल गो टू माय फेसबुक हियर, I'll select this M2 and M2 underscore depth. There is one more question from Shikhar Srivastav who says laptop or desktop, which one is good for 3D? I would say this completely depends आप कौन से configuration का लेते हो। अगर आप low end configuration का लैपटॉप या डेस्कटॉप लेते हो तो अल्टीमेटली आपका दोनों में ही काम उतना स्मूथली नहीं हो पाएगा। जब आप 3D या VFX के एप्लीकेशन में काम करना चाहते हो, then it is obviously good that there is a high end configuration. There is one more nice question again from Rahul Kaushan, and I appreciate that question, which is if we take less blur pick, will it will be easy for making selection and then blur it through lens blur? Through it will use some gradient to blur it, though it will use some gradient to blur it in depth. Yes, see, now the thing is, Rahul, if you see, अगर हम लोग वो वापस से कॉफी मग के ऊपर जाए, वो वाला जो पहले वाला था जिसमें वो स्टारबक्स का कॉफी था, so that कॉफी मग was pretty much precise. तो वहां पर ही बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि दिस इज वेरी मच बेटर, उसमें वैसा ब्लर नहीं है। सो द एरियाज जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट एजेस दिखाई देती है, वहां पर आपको उतना सा ब्लर नहीं, ब्लर का जो आपको इश्यू है वहां पर नहीं आएगा, बिकॉज आपने बहुत ही प्रिसाइजली उसको सिलेक्ट किया है। नाउ अगेन यहाँ पर मेरे टाइम की कमी के होने के बावजूद मैंने ये कॉफी मग ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से किया था, जो कि मेरा 70 या 80% काम कर देता है। बट अगेन इफ यू आर डूइंग फ्रॉम पेन टूल और जहां पर एजेस बहुत ही ज्यादा शार्प आते हैं, वहां पर आपको ये इशू बहुत ही कम हो जाएगा जो ब्लर का है। तो यहाँ पर मैं पोस्ट करूंगा इसको, जो कि मैंने उल्टा किया था पूरा, जो कि अगेन राहुल का एक ये था। तो राहुल अब आप मेरा अगर व्यू देख पा रहे हो एक बड़े व्यू में, तो इसने पूरा कैसे इट हैज प्रिपेयर्ड अ वेरी गुड खिचड़ी, बहुत अच्छी खिचड़ी बन गई है, जहां पर ये कैलकुलेट अब नहीं कर पा रहा है कि मेरे ब्राइट पिक्सल्स कौन से और डार्क पिक्सल कौन से है। सो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो मुझे पहले भी मेरे सेशंस में मिला था, इसलिए मैंने वो ऐसा सेव करके रखा था। सो आप ये देखोगे जो डार्क है, जैसा कि मेरा ये कप था, राइट, सो ये अब कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। राहुल, एम आई होप आई एम क्लियर टू यू। There is again a question from Minakshi Singh who says there is only Facebook to turn the image into 3D. Yes, as of now, Facebook has integrated this 3D engine around 8 months to 12 months back. ठीक है, सो वहां पर फेसबुक ने अपना एक नया इंजन क्रिएट किया था। यहाँ पर आप बहुत सारे देखोगे इसका रियल एप्लीकेशन में,
for the event management companies or as I said for the product companies who want to promote their product, वो लोग ऐसे कुछ create करते हैं, ऐसा कुछ content, so that उनका interactivity हो between the user जो कि आप हो and the company or the product. So which I had created many time back and I had uploaded it on my Facebook. Just 1 minute, I'll just stop sharing once as of now. अगर आपको मेरा स्क्रीन अभी वापस दिख रहा है, तो ये देखोगे देयर वाज वन मोर चैनल जहाँ की मैं बोल रहा था आपको अलग अलग कैरेक्टर्स के कटआउट है, ये मैंने क्रिएट नहीं किया, जस्ट मैंने इसको शेयर किया था। तो यहाँ पर भी आप देखोगे जैसे आप ज्यादा एक्सट्रीम जब आप मूव करते हो अपने कर्सर से तो वो हल्का सा ब्लर आपको दिखेगा ही, राइट। सो दिस इज द फेमस फिल्म डायरेक्टर मिस्टर सत्यजीत रे। आई एम श्योर बीइंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड वी ऑल नो हिम। सो ये कैरेक्टर्स आप देखोगे अलग सा इनका प्लेसमेंट है, अलग सा इनका प्लेसमेंट है, राइट। तो ये आपको एक अच्छा सा डेप्थ दे रहा है कि ये कैरेक्टर सबसे आगे है मेरे कैमरा के, ये कैरेक्टर पीछे, ये और उनके पीछे, और ये उनके पीछे। So I hope I was able to answer all of your questions. And just before ending up, I would like to show you one more example जो कि मैंने बहुत पहले create किया था, वही मैं search कर रहा हूँ, just 1 minute. एक था ये, तो ये आई एम श्योर आपको जो व्यू आ रहा है वो थोड़ा सा लैग होके आ रहा है, जब रियल टाइम आपको व्यू नहीं आ रहा है, बिकॉज जब मैं मूव कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लेकर आपको वहां पर डिस्प्ले हो रहा है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप ऐसा खुद क्रिएट करो। आई एम श्योर ये आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें ये चीज करने में। एंड देन यू कैन ऑलवेज टैग मी सो दैट आई ऑल्सो गेट अ नोटिफिकेशन कि आपने ये अपलोड किया, एंड देन आई कैन पुट माई कमेंट्स ऑल्सो देयर। देयर वॉज वन मोर थिंग which was this. So ये आप देखोगे this is again a portrait over here, or not a portrait exactly but एक character था, and there are nice background in the sky and the mountains over here what I had created. तो अगेन यहाँ पर भी आप देखोगे जितना भी इसको ज्यादा एक्सट्रीम में मूव करूंगा तो उतना सा मेरा वो ब्लर का पोर्शन दिखेगा। तो इसका सोल्यूशन एक ही है दैट यू कैन ऑलवेज मूव एग्जैक्टली, थोड़ा सा आप इसको स्लाइटली मूव करो जितना कि आपका कैमरा एंगल ओरिजिनल जो हो। अगेन दीज वर फ्लैट इमेजेस, इसमें कोई डेप्थ नहीं था। So yes, these were the extra 2 examples what I had created over here. So any questions do we have? Again, we have got a question from sir, can I also see 3D effect in phone gallery if it downloaded after upload? नहीं, फोन के गैलरी में आपको वो इफेक्ट नहीं आएगा, बट अगर आप फेसबुक ओपन करके अगर आप ये दोनों इमेजेस को डेप्थ में क्रिएट करके जब आप अपलोड करते हो आपके फेसबुक कैप के थ्रू आपको वो नजर आएगा इफ योर फोन हैज अ गायरोस्कोपिक सेंसर। 99% ऑफ द फोन्स हैव दैट। सो आपको जस्ट फोन को मूव करना है और वो डेप्थ को अपलोड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, इज देयर एनी डेडिकेटेड 3D इंजन लाइक दिस वेयर वी कैन कन्वर्ट 2D to 3D?
there are of course there are 3D softwares or tools which do convert this from 2D to 3D, but of course they are not available, or they are not open source, or they are not available to us for free. There is of course a cost for that, but as Facebook had just invented this new thing which is free to use, that's why I had explored this and conducted today's session, जहाँ पे आप आराम से ये कर सकते हो. There is one more question again from Rahul who says, can Facebook read PNG image? Yes. So, so Facebook can also read PNG images. आराम से वो PNG को भी read कर पाएगा. But just एक चीज आपको which you have to make sure is that your depth image again has to be renamed as underscore depth. If you are not renaming your file as underscore depth, which is a depth map, Photoshop will not be able to recognize that file as a depth map. So again we have from Vinisha Fatima who says, so in all cases the closest object has to be the lightest color. Yes, the closest object has to be the lightest color, and the darker has to be the has to be far, like the the object which is far from your camera has to be dark. Sir, can we create this 2D to 3D effect with two different pictures? नहीं, two different pictures अगर आप लेते हो, मान लो आपने ये मेरा जो स्क्रीन दिख रहा है वो लिया, और उसके पहले मैंने सपोज करो एक वो बिग टॉम जो टमाटो के चिपका था वो लिया, तो उसमें वो कैसे हो पाएगा? वो तो अलग ही पूरा इमेजेस हो गया ना. तो एक सिंगल इमेज को आपको पहले डेप्थ क्रिएट करना है, देन दोनों को आपको अपलोड करना है. So if the background is black and we have just one image and this is a portrait of a person, can we create this 3D effect? See, Satvi ki Saxena, you can create this 3D effect, but अगर suppose if you are able to see my screen, अगर आपके पास ऐसा कुछ image है, right? मैं दिखाता हूँ मेरा screen. से फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसा कुछ इमेज है जहाँ पे एक अगेन एक कैरेक्टर और पीछे एक फ्लैट सा बैकग्राउंड है, तो वहां पे आपको उतना डेप्थ नहीं आएगा. यहाँ पर आपको डेप्थ, मेरे ये फेसबुक वाले इमेज में इतना डेप्थ ज्यादा था बिकॉज देयर वर सो मेनी नाइस बैकग्राउंड ओवर हियर, इसलिए आपको इतना ज्यादा वो डेप्थ आ रहा है. बट अगर आप ये फ्लैट इमेज के ऊपर ऐसा करोगे तो शायद आपको उतना डेप्थ नजर नहीं आएगा बिकॉज इट इज अ फ्लैट इमेज. ये दिख रहा है मेरा नया इमेज. तो यहाँ पर दिस इज अ फ्लैट बैकग्राउंड ओवर हियर. So I hope I am clear. Any other questions do we have? साथी की, as I just said, आपका अगेन क्वेश्चन यही है, अगर बैकग्राउंड अगर डार्क फ्लैट कलर हो, तो डार्क फ्लैट अगर आपका कलर होगा तो शायद आपका इफेक्ट या 3D इफेक्ट जो है उतना आपको नजर नहीं आएगा. आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो, बट एक जो इफेक्ट आना चाहिए वो उतना शायद ना आए if it is a single flat color. But again, if it is a image something like this, अगर आप मेरा इमेज देख पा रहे हो अभी, so this is also a portrait हम इसको बोल सकते हैं. बट यहाँ पर अगर आप देखोगे आपको अलग अलग टोन्स मिल रहे हैं, अलग अलग शेड्स मिल रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के, जैसे there is a building here, there is a poster here, तो यहाँ पर आपको मिल सकता है वैसा डेप्थ. बट अगेन एक फ्लैट कलर पे आपको डेप्थ उतना नहीं आएगा. I don't have Facebook account, so which app should I use? Payal Soni, I'm sorry to say you have to use Facebook only as of now. So आप एक account बना सकते हो if you want. If you do photo manipulation with 2 to 4 pics and do this effect, sorry, sir, if you do photo manipulation with 2 to 4 pics and then do this effect 2 to 3D, will it work? Yes, it will of course work. This question is from Krishnendu Jana. So Krishnendu, अगर if you see, हम लोग ने जो आज ये इमेज के ऊपर काम किया था, which was this. So ये 2-3 इमेजेस ही थे. अगर मैं इसको आपको फोटोशॉप का फाइल दिखाऊं मेरा, so ये मैंने अलग अलग इमेजेस से डाउनलोड ये किया था, अलग अलग इमेजेस थे ये. So this was my original image. So इसके ऊपर मैंने एक बीच डाला एंड देन उसके ऊपर मैंने स्काई डाला और इसका कलर टोन चेंज किया था. So this was my original image over here.
जहाँ पे एक सिटी स्केप पूरा आपको दिख रहा है, बट यहाँ पे आई हैड चेंज दिस टू बीच एंड देन टू आई हैव एडेड स्काई आल्सो विद सम कलर करेक्शन एज वेल. सो यस, आप 3 4 5 इमेजेस जितना, अगर आपको मैट पेंटिंग भी करना है, मैट पेंटिंग अगर आप करोगे तो बहुत ज्यादा उसका ये आएगा, बिकॉज इट्स अ ह्यूज लैंडस्केप एंड देन आपको वो अलग अलग लेयर्स में अगर आप इसको करते हो, इट विल हैव अ वेरी नाइस इफेक्ट. So I hope I have answered your answer. So we have got a comment which from again Mr. Rahul Kaushal, who says, yes sir, thank you, interesting technique and simple one. It is quite cool for conducting promotions in Facebook rather than using still images. Thank you Rahul. आई होप आज का ये सेशन आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा. नया चीज है, फेसबुक हम सब यूज करते हैं, बट शायद बहुत सारे जन को मालूम नहीं होगा कि हाँ ये फीचर भी था. फेसबुक में हम इमेजेस अपलोड करते हैं, हम रोज के रोज अपना स्टेटस अपडेट डालते हैं, बट we might not have been aware of this feature also. So when we are learning Photoshop, we can always explore these features, and as currently as we are in lockdown time, you can always start experimenting and doing some works and upload on your Facebook. So I would appreciate if I can get some views of today's session. I hope I've gone through all the questions, sub questions I have tried majorly to cover up. If any questions or something, if any feedback, if you would like to share, please share. We have a comment from Dheeraj Yadav who says, I hope you will take more session like this. Thanks, Dheeraj. Yes, I'll be taking some more, conducting some more sessions. We have from Satviki Saxena who says, very interesting session. Thank you so much, sir. Thank you, Satviki. Then we again have someone, Neha, who says, sir, you have explained it very clearly. Thank you so much. Thank you so much, Neha. We have from Laksh Jonwal, who says, great technique. I enjoyed a lot and it is super interesting. Thank you. Thanks, Lakshya. We also have one more from Tanmay Ganeshan, who says, sir, it was a great and interesting session. Rahul again says, making interactive panoramic in Facebook can make you next webinar on this topic. Making interactive panoramic. Okay. We'll definitely look into this. Now we are very thankful to you for 2D and 3D in Photoshop session, says Sangeeta Kumari. Thanks, Sangeeta. It was my pleasure. Thank you for explaining such an interesting technique. We'll definitely try. We have got this from Payal Soni. Thanks, Payal. Next, we have from Krishnendu Jana, who says, the way